السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہلو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. شیر ہندوستان حضرت مفتی ہدایت اللہ صاحب خیریت سے ہیں؟ ہاں جناب صاحب. میں حضرت آپ کا نام تو بتاؤ. میرا اطہر حسین قادری. اطہر حسین قادری. کہاں سے بول رہے ہیں آپ؟ میں سرونج ایم پی. سیرون سے بول رہے ہیں. یہ بینا جنکشن کے پاس ہے نا. بینا جنکشن سے تو دور ہے. آپ مجھے کیسے جانتے ہیں؟ ارے آپ کا ڈنکا بج رہا ہے صاحب. آپ بہت بہادر شخصیت ہے. غازی ارے نہیں. ارے نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے جی. میں تو بہت معمولی انسان ہوں. نہیں، آپ نیمت میں بھی رہے بہادری کے دم پر، اور یہاں بھی جن میں بھی آپ نے سنیت کا سکہ جما دیا. ارے نہیں. سب ختم ہو جاتا معاملہ. آپ نہیں پہنچتے تو سب ختم. ارے وہ تو ٹھیک ہے، مگر میں تو بہت معمولی نہیں، آپ کا ہوں. پیغام جانا چاہیے قوم تک. جو آپ پیغام دیں گے انشاءاللہ چینل کے ذریعے قوم تک پہنچے گا. جیسی آپ باتیں بتائیں اس سے عوام کو فائدہ ہو، چینل کے ذریعے سے عوام تک پہنچے. آج کے جو زمانے کی ضرورت ہے کہ سنیت میں کیا کیا کمی ہے. مقرروں کو ایک تو 50,000 والوں کو نہ بلایا جائے، یہ میرا پیغام ہے. جو 30,000 لے پاجامہ ٹخنوں سے نیچے پہنے ان کو بالکل بائیکاٹ کیا جائے ایسے مقرروں پر. ارے جو خالص ہوں، اللہ کے واسطے کام کریں، ان کو بلایا جائے. ہاں، ان کو بلایا جائے. آپ بالکل، آپ کا یہ پیغام ہم پہنچا دیں گے چینل کے ذریعے سے. کچھ ایسا آپ بتائیں جی. کہ جو بس بالکل یہی ہے. آس پاس کے امام ہوں ان کو بلایا جائے. ان اماموں کو موقع دیا جائے. وہ سچے دل سے وہ خدمت کر رہے ہیں اور کریں گے. اور یہ بڑے بڑے جو آ رہے ہیں یہ تو خامخواہ نوٹ مال کمانے والے لوگ ہیں، پیٹو رام ہیں. ان سے دین کا کوئی فائدہ نہیں ہے. کیا ہو رہا ہے؟ پاجامہ ٹخنوں سے نیچے پہنتے ہیں، جبکہ جو سنت ہے کہ خطبہ اونچا بنے. پہننا سنت ہے. اور یہ کہتے ہیں دیوبندی نیچا پہنے گا. ارے دیوبندی بریلوی اس میں کیا ہے پاجامہ پہننے میں؟ مفتی اعظم ہند خود اونچا پہنتے تھے. مفتی اعظم ہند خود اونچا پہنتے تھے. ارے پاجامہ اور کرتے سے مطلب نہیں ہے. جو کہ دل کیا ہے تمہارا؟ دل میں تو سوائے دنیا بھری پڑی ہے کہ ہائے دولت ہائے دولت. کیسے مسلمانوں کو بے وقوف بنا کے لچھے دار تقریر کر کے اور اپنے ہاتھ چمبا کر کے اور ہوائی جہازوں سے جا کے کرایہ لے کے ہوائی جہاز کے ذریعے آ کے اور گھر جا کے بیٹھے جائے گھر والے مار رہے ہوں. ہاں، اور 3 4 مہینے غائب رہتے ہیں. ہاں سب معلوم ہے. حرام خور لوگ ہیں یہ سب. بیوی، ان کی بیوی گھر میں بیچاری انتظار کرتی رہتی ہے کہ ہمارے کہاں کہاں جاتی ہوگی بیوی. یہ کہتے ہیں ہماری اتنے مہینے کی تاریخ بک ہے. تو تمہاری بیوی کا کیا ہوتا ہوگا پھر؟ ارے بیوی کیا کرے؟ بنا بچے بیچارے ترسے کہ ہمارا پاپا کہاں چلا گیا. ہاں، کہاں چلا گیا. اور یہ 2 مہینے بکنگ کر رہے ہیں ہوائی جہازوں کی. 1.5 مہینہ. حرامی لوگ ہیں تو یار. ارے صاحب، ان لوگوں نے بیڑا غرق کر دیا. مفتی اعظم ہند نے کبھی طے نہیں کیا پیسہ تقریر کا. صدر العلماء تحسین صاحب نے کبھی پیسہ طے نہیں کیا. ارے اس میں کیا طے کرنا پیسہ؟ دین کا کام طے کر کے نہیں ہوتا ہے. دین کا کام دنیا والوں سے بدلہ لے کے نہیں ہوتا، اللہ کے واسطے ہوتا ہے. اور اللہ اسباب پیدا کر دیتا ہے. اللہ اسباب پیدا، یہ آپ نے کئی بات کی. اللہ تعالیٰ پھر اسباب پیدا فرما دیتا ہے. یہ جتنے پیسے طے کر کے اور وہ ہیلے سے فتوا لے کے حرامی جو تقریریں کر رہے ہیں، حرامی ہے یہ، حرامی ہے یہ، حرامی ہے. ڈال دینا میرے نام سے. ہاں بالکل ڈالنا چاہیے. آپ تو شیر دل. ایسا لگتا ہے کہ ہندوستان میں آپ جیسے امام میں نے ابھی نہیں دیکھا. حقیقت بات ہے، جتنا آپ حق بولتے ہو اتنا حق بولنے والا بھی ہندوستان میں مشکل سے ملے گا. ارے مگر میں آپ کا ڈنکا، آپ کے بارے میں انہوں نے بتا دیا تھا. شیر ڈھکیا اور فاضل جلیل عالم نبیل حضرت مولانا اسلم صاحب نے بہت تعریف کی تھی آپ کی. اچھا 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 اچھا. صاحب اسلم صاحب بھی اتنی قابل شخصیت ہے کہ اکیلے اپنے دم پہ نباہڑا میں انہوں نے سنیت لہرا دی. نباہڑا میں سنیت لہرانا آسان بات نہیں. وہ اکیلے اپنے دم پہ لہرایا ہے. میرا اور ان کا دور ایک ہی گزرا ہے. وہ نیم بہڑا سے میں نیمت تھا. ہاں، تو وہ آپ کا ڈنکا انہوں نے بجایا کہ انہوں نے بتایا کہ ان سے آپ بات کرنا. وہ کہہ رہے تھے کہ یہ لیاقت رضا محبوب عالم کے بارے میں بتایا کہ انہوں نے جھوٹا کسی کو عبدالسبحان رضا بتا کر اجین میں لے آئے تھے، کسی کو ایک مولوی کو. صحیح ہے. بتائیے کتنی جال سازی ہے کہ جھوٹا بتا کے اور یہ سبحان اللہ صاحب ہیں ان کو بتا کے آپ یہاں اجین میں لا کے دھوکہ دے رہا ہوں. حضرت سنیے اب آپ. یہ دونوں اتنے نطفے ناتحقیق ہیں دونوں، لیاقت رضا اور میں اس کو محبوب عالم نہیں مردود عالم بولتا ہوں. ہاں صحیح بات. یہ من کا مردود عالم ہے، محبوب عالم، دونوں نطفت ناتحقیق ہے. ان دونوں نے قوم کو بہت ٹھگ رہے ہیں. مکاری کے ساتھ پیری مریدی قابل ہے یہ. ارے ان میں کوئی دم درود رکھا ہے
ये काय के पीरी मुरीदी वाले हैं, ससुरे आला हजरत के नाम से लोगों को ठग ठग के ला रहे हैं, अय्याशियां कर रहे हैं हरामी। अरे वो मदरसे में 25 बच्चे थे जानसरपुरा में, वो भी क्या मालूम कहाँ से ले आए थे, सूरत से उधर के ला के रखे थे। ये सब दिखावे के लिए, जब माल कमाना होता कौन से तो बच्चे ला के बैठा देता है ये मरदूद आलम। हाँ बाकी कोई काम नहीं है। और सुनो हजरत सुनिए, ये रमजान में जो हाफिजों को तो रखता है मस्जिद में तरावी पढ़ाने के लिए, इसमें कमीशन खाता है ये। खाता हुआ वो तो आधा अरे पक्का प्रूफ है जी, पक्का प्रूफ है, कमीशन खाता कमीशन। और सुनो सुहानी मियाँ वाला मसला तो एक ही नहीं है। अभी तो मेरे पास इतने सबूत हैं कि इस मजदूर ने जिन जिन बड़े मुकर्रिरीन को बुलाया और कमेटी वाले से लिफाफा ले लिया कि 50,000 देने, और उन्हें पकड़ाए चलते रास्ते स्टेशन पे 11,000। 11,000? हाँ ये भी? अरे कितने बड़ा मक्कार है साले। अरे मैं कह रहा हूँ ना साले, ये मैं कह रहा हूँ इनसे बड़ा मरदूद तो शायद मध्य प्रदेश में मुश्किल होगा। और वो लियाकतुल्लाह खलीफा मुफ्ती हिंद बन के अपने बेटे को भी बना दिया। देखो वो सबको बना दे, और अपने होने वाली जो इनकी नस्लें पैदा हो रही हो ना, वो लिख के रख दे कि जो मेरे खानदान में मेरी नस्ल में पैदा हो सारे मेरे खलीफा, तो इनके पिछवाड़े ऐसे कुटेंगे हजरत, ऐसे कुटेंगे कि मुफ्ती आजम तो इसको बचा नहीं सकेंगे। अरे साहब बिला वजह झूठ बोलो कि खलीफा मुफ्ती लिखवाता था, अब तो नहीं लिखवा रहा है, पहले बहुत लिखवाता था, अब तो ये अंडरग्राउंड लिखवाता है। अरे अंडरग्राउंड तो लिखवाता, माल कमा लिया ना, अब इसने क्या रखा है। हाँ ऐसी वो शीशगढ़ वाला दुनका वाला खलीफा मुफ्ती हिंद बताते हैं वो। अरे हजरत कुछ नहीं होता इन बातों से, कुछ नहीं हो, बड़े बड़े मक्कार मर गए दुनिया से। लखीमपुर वाले वो खलीफा मुफ्ती हिंद बन गए। सब मुफ्ती आजम की आड़ में माल कमा लो, आला हजरत की आड़ में माल कमा लो। मुफ्ती जलालुद्दीन साहब ने लिखा 479 खुतबात मुहर्रम में साजिद साहब खिलाफत नामे बांट रहे थे मुफ्ती हिंद के, वो खिलाफत नामों से बन गए खलीफा मुफ्ती हिंद। जी खुतबात मुहर्रम में 479 में लिखा। अब जो हजरत वही खिलाफत है ये फर्जीवाड़े की। हाँ बिल्कुल वही फर्जीवाड़े की। और अच्छा उज्जैन में कौन है इसका मुरीद? उज्जैन में नहीं होगा। हाँ सही बात है, आसपास नहीं होगा। हाँ क्यों नहीं है? अब तू कर्नाटक में जाके मुरीद बना, बेवकूफ लोगों इतनी दूर जा करके आला हजरत और मुफ्ती आजम की फजीलत बयान करके मुरीद बना रहा है, माल कमा रहा है। और जो इंदौर में वो अनवर कादरी वो माल कमा रहा, वो पीरे मौका बन गया। अबे तुम में कुछ दम है नहीं है, रहने दो यार। अरे वो पहले मुफ्ती बदरुद्दीन साहब का खलीफा बताता था, अब उनका बताना छोड़ दिया। कितना झूठ बुलवाता था कि मैं मुफ्ती बदरुद्दीन साहब का खलीफा। हाँ वो हमारे यहाँ जलसे में कई बार आया तो उन्होंने यही बताया बदरुद्दीन साहब का। मन गया यार वो तो हस्ती थे। जमालुद्दीन साहब उनके साहबजादों को हमने बुलाया तकरीर के लिए, समझे, तो उनसे मालूम किया था। अब ये जबरदस्ती किसी का भी समझे लेवल लगा लेते हैं। मैंने भी बुलाया उनके साहबजादे, दोनों आते थे भाई, जमालुद्दीन और जलालुद्दीन। हाँ तो हम जमालुद्दीन साहब को तो जानते हैं, उनको बुलाया। नहीं वो उनके भाई भी आते थे साथ में, एक जलालुद्दीन थे बहुत अच्छे मुखलिस आलिम थे साहब। हाँ तो मैंने उनसे पूछा आपको खिलाफत है क्या? हमें तो नहीं खिलाफत। अब्बा ने जब बेटों को खिलाफत नहीं, वो भी आलिम है, बेटे छोटे अच्छे आलिम है, दोनों जानकार आलिम है, परहेजगार भी है, जब उन्हें खिलाफत नहीं दी तो अनवार अहमद को कैसे दे देंगे? कुछ नहीं है, कोई बुला बुलू लिया हुआ मजलसे फलसे में और चूम लिए होंगे और बस उनको बता दिया होगा कौम को, और फर्जी वाले ने खिलाफत ले लेकर के और खलीफा बन गए। अरे माल कमा रहे हैं हजरत, ये सुअर माल कमा रहे हैं सब। अरे झूठ बुलवाना कि मैं बदरुद्दीन साहब का खलीफा हूँ। हाँ झूठ बोलता है ना, बदरुद्दीन साहब के खिलाफ खलीफा बोलता अपने को। वो तो अब नहीं बोलता, पहले बोलता था, अब तो गरीब यहाँ से खिलाफत ले ली, कहीं किसी से ले ली। अरे वो किसी से भी ले ले। मैं तो एक मैंने कहा देखो रे, मैं से मतलब मैं हजरत आदम का भी खलीफा हूँ। हाँ तो फिर खिलाफत चली आ रही है तो यही थी, मेरे तो घर की भी खिलाफत है। गलत पहली बार ये गलत की बात की, आदम साहब का खलीफा। तो और क्या ना, वो अल्लाह के खलीफा है और आप उनके खलीफा हो। सही तो बात है भाई। भैया आदम जो है मैं उनकी औलाद में हूँ ना। हाँ तो खलीफा तो हो ही, आप बिल्कुल खलीफा हो। तो वो आदम साहब अल्लाह के खलीफा है, वो अल्लाह के खलीफा है। अल्लाह ताला ने उनको खिलाफत अता फरमाई। हमने फिल्मा वक़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा, बेशक अल्लाह ने फरमाया फरिश्तों में जमीन में बनाने वाला हूँ अपना खलीफा। बिल्कुल है। और साहब उनकी औलाद में ही तो है ये सब, मक्कार भी उनकी औलाद में है। साहब ये पहले इमामत करता था वहाँ पर, ये कौन है, शेरपुर है ना, ये मध्य प्रदेश का लास्ट किनारा, अनवार अहमद काजी। हाँ मालूम। वहाँ इमामत करके वहाँ से जो भी कुछ किया उन्होंने चमत्कार वगैरह।
देखिए साहब, ये पीर जितने ज्यादातर पीर जो है ना, जिनमें मक्कारी कूट कूट के भरी है ना, ये मक्कार लोग हैं। अरे फिर ये गौसिया मस्जिद में इमामत की इन्होंने चंदन नगर में, हाँ हाँ बाद हाँ में बकरा मंडी में आ गए। हाँ। तो इनके मामला तो ऐसी है, वो तो ये आप 2-3 मरीजों को रख लेते थे जो खड़े रहे, हाथ बांधे इनके सामने खड़े रहे। ये अरे बहुत बड़े मकान खाएंगे पीर साहब, मेरा दिमाग खराब हुआ, 2-4 को कूट काट दूंगा इन पीरों को। साला ने कौम को अच्छा सुनो, कौम की इस्लाह नहीं हो रही है, बस इनके आगे हाथ बांध के खड़े रहो, इनकी जी हुजूरी करो, इनकी तवाज़ो करो और इनकी ताजीम करो, बस इस बात अच्छा, की माल नहीं जिंदगी है। देखते, माल कहीं से दिया जाए, हराम हलाल कुछ भी जाए खा। अरे साहब, ब्याज वालों का ले रहे हैं, जुए सट्टे वालों का ले रहे हैं, सबका चल रहा है इनके यहाँ। मैं गया था, ये ढोरा जी ने तरावी में पढ़ाया था चिश्तिया मस्जिद में, तो बता रहे थे शियन महल्ला है गोंडल में, शियन वो सब सूद ब्याज लेते हैं, मजा के ये अनवारुल बयान मजा के खेलते थे, खाते थे। हाँ तो ये सब माल के लिए सब जगह चले जाते हैं हजरत। हाँ बिल्कुल। इनको हराम हलाल की तमीज नहीं है। नहीं, वो पहले पाकिज़ा वालों को पकड़ लिया था, सुना वो अलग हो गए पाकिज़ा वाले। जी, पाकिज़ा वाले तो बढ़िया आदमी है, तो खर्चा करते हैं कौम के ऊपर। देखिए वो खालिसन लिल्लाह दीन का काम करते हैं। हाँ। अरे हमारे जलसे में बुलाते हैं, हमारे सलीम पटेल ने भगा दिया इसको, किसको? अनवार कादरी को। किस बात में? बस यही गड़बड़ में माल किसी का भी माल आया, हराम का हलाल का है, बस कई जलसे, एक बार जलसे में बुलाया जहाँ उज्जैन में हमारा जलसा मेरी उसमें सदारत में होता है, और जब गौसिया कॉन्फ्रेंस होती है, गौसिया आजम कॉन्फ्रेंस, उसको बुलाते थे हम। हाँ। बाइकाट कर दिया इसका। बाइकाट कर दिया? नो, बाइकाट कर दिया, कई साल हो गए, मैं भगा इसे। हाँ, वो तो बस झूठ बोलना, झूठ बोलो कि अपनी करामत से बनाना। अरे कुछ नहीं, करामत करामत हजरत, जो अल्लाह वाले होते हैं वो अपने मुंह से नहीं बोलते। हाँ, वो अल्लाह, ये आपने की, वो खुद नहीं बोलते, दूसरे बोलते हैं। दूसरे बोलते हैं और उनसे दीन का काम होता है। उनसे दीन का काम होता है, ये कही आपने बात, वो खुद नहीं बोलते, दूसरे बोलते हैं। अभी इसके छापा पड़ा था, इनकम टैक्स का छापा, 50 लाख रुपए दे के जान बचाई है इसने। किसने? अनवार कादरी ने। ये आज मालूम हुई बात, 50 लाख रुपए देंगे। हाँ, इनकम टैक्स का छापा पड़ा, इसके बेशुमार दौलत है इस पे। पूरे अरबों रुपए का है पूरा, उसने चंदन लगा, खजराने में सब जायदाद बना दी। अरे सबको घोल के पी गया ये तो। इंदौर को इसने अच्छी तरह से चाट लिया, इंदौर। और अरे फिरौन, कारून, नमरूद, सद्दार नहीं रहे तो ये भी क्या रहेंगे, मरा जाएंगे। अब तो बीमारी लग गई है, सुना है बीमारी लग गई। अरे मरो ससुर, बीमार होके मरो या कैसे भी मरो, और इनसे मरने के बाद में कौन से इनके फैज पहुंचेगा, काय का फैज हुआ, तो उल्लू के पट्टे हैं वो हमारे अवाम में भी, सुन्नियों में ऐसे हैं, बस पीर के नाम पे फिदा हो जाते हैं। अबे ये तो देखो इसमें कुछ है कि नहीं। देखो सही बात है, झूठ बोल रहे हैं। झूठ बोलने वाला कभी पीर नहीं होता सारे, तो बहुत झूठ बोल के। अरे बड़े भारी झूठे हैं, मक्कार हैं। कोटा में फर्जी इमाम हुसैन अस्सलाम का मज़ार बना, 7 साल गए, 1 साल नहीं, 1 साल में तो चलो मान लेते अपन, 4 साल लगातार गए, जानने के बाद भी कि यहाँ मज़ार नहीं है, वहाँ जाके तकरीर करी, उस जगह को बढ़ावा दिया, कोटा की जो इमाम हुसैन की यादगार के नाम से बना रखा उन्होंने। तो आज भी वहाँ मौलवी जाते हैं सिर्फ लिफाफा लेने के लिए कि लंबी चौड़ी रकम मिल जाए या जाएंगे हमको। और हजरत अशफाकुल उलमा मुफ्ती आजम राजस्थान जो जिंदा बुजुर्ग शख्सियत थे, उन्होंने उस जगह को देखकर ही पीठ फैल ली थी, उस जगह वापस दोबारा नहीं गया। कोई ने बताया हजरत ये जगह, तो एकदम आप नाराज होके एकदम वापस हुए, मुझे बताया वहाँ पर मास्टर मुन्ना खान गौरी साहब ने बताया कि मेरे जरिए से बुलाया था उसने, जो जगह बनाई थी, तो कहा ये जगह यादगार हुसैन के। तो हजरत ने बात ही नहीं की, न चाय पी न पानी पिया, एकदम वापस। देखिए ये है जिंदा बुजुर्ग अब्बामल आलिम की पहचान, कि आपने रुके ही नहीं, पानी नहीं पिया वहाँ बिल्कुल। मुफ्ती अशफाक साहब अलैहि रहमा के पैरों की धूल नहीं है ये पीर। ना ये आजकल के ये क्या है साहब, ये सब मक्कार है, मक्कार मुकत्ता बन के ना, और अपने शो बना करके ना, और कुछ ऐसे दलाल से अपने जो है ना चाटुकार अपने साथ में कर लेते हैं, जो उनकी बड़ाइयाँ मारते हैं, तारीफें करते हैं, और लोग इनके ऊपर आशिक हो जाते हैं। अरे वो इन्हें पैसा खिला देते हैं कुछ दलालों को कि करामतें बनाओ हमारी, और वो इनको नोट देते हैं, थोड़ा सा खर्चा मर्चा देते हैं कि हमारी करामतें बना के उड़ाओगे। हजरत को हमने यहाँ देखा, हजरत को हमने वहाँ देखा, हजरत के पैर हमने देखा, रात में आया था कि हजरत का एक हाथ इधर था, पैर उधर था। कुछ भी करामतें बनवा देते हैं तो अपने मानने वालों से। अरे मैं तो इनके खिलाफ बोलता हूँ कि घर वाले ढूंढते फिर रहे हैं और इनकी करामत जाहिर हो रही है। ये भी सुना है कि अनवार अहमद कादरी के जो वालिद साहब है ना, देवबंदी जमात से जुड़े। हाँ बता, अपने बाप को तो सुन्नी बना ना सका। हाँ मैंने सुना, आपने भी सुना होगा।
अरे सब ऐसी घालमेल है हजरत। वो तो सुना, क्या है? सूरत से आते हैं कपड़ा लेके चले जाते हैं, इसके यहाँ नहीं है, रुकते यहाँ पर, इंदौर में नहीं आते यहाँ। आते भी हूँ तो चुप चपा के रुकने नहीं देता हुआ, वो क्योंकि जमात से जुड़े हुए हैं इनके वाले। और इनका इलाका तो हजरत जमात से जुड़ गया, पूरा बस्ती का इलाका देवबंद वालों से जुड़ चुका है। मैं यही कह रहा हूँ हजरत कि ये इतने बड़े पीरे मुगा बनते हैं, तो हजरत ये अपनी बस्ती को ही बचा लें। नहीं बचाएंगे, ये तो पैसा कमाने के लिए इधर उधर भागते फिरते हैं। पैसा इनको चाहिए, पैसा। हाँ, पैसा कमाने। अब ये जामिया अजहर मिस्र से क्यों ताल्लुक रखते हैं कि जामिया अजहर की डिग्री मिल जाएगी तो हमें 10,000 का 50,000 मिलेगा। हाँ साहब, दीन और सुन्नियत से इनका वास्ता नहीं है। जामिया अजहर में आप जानते हैं ये सब देवबंदी अहले हदीस सब आजाद ताल्लुक रखते हैं। हाँ जनाब, हाँ। वहाँ पर ये ऐसा कोई मामला ही नहीं है, वहाँ तो सबको वो लोग यानी एक ही तरह से मामला मानते हैं हम लोग, कुछ भी नहीं है। वहाँ फतवेबाजी क्यों नहीं करते? जामिया अजहर जाने वालों पर खूब भेजते हैं अपने बच्चों को जी। ये अनवारुल बयान भी भेजता है खजराने से जी। तो भाई जब तू इतना कट्टर है तो पहले जामिया अजहर वालों से मालूम तो कर के वो क्या फतावा समरा को मानते हैं और वो क्या क्या उनके मामूलात हैं वो मालूम तो कर। वो तो सब पहले खड़े होते हैं और वहाँ जुमे की अजान अंदर होती है वहाँ पर जामिया अजहर में। एक सुन्नत को जिंदा न कर सका ये पीरे मुगा बने भड़वा। अरे साहब जायदाद बना ली इंदौर में, आज जायदाद इतनी बड़ी बना ली कि दुनिया में हिंदुस्तान में शायद पहले नंबर में है, मध्य प्रदेश में। अरे साहब हराम की दौलत कर लो इकट्ठी, रहेगी नहीं। हाँ, अंजुमनों के नाम पे, तंजीमों के नाम पे, जलसे जुलूस के नाम पे, और एक इनमें मौलाना आरिफ बरकाती सही है, वो आरिफ बरकाती को इसने अपने संग कर रखा है। हाँ, वो उसने पैसा दे के मकान दिलवा दिया, शादी करवा दी। हाँ। बेचारे का मुंह दब गया, पहले वो बोलते थे सही हक बात, अब नहीं बोल पा रहा। देखिए ऐसा आदमी मजबूर कहीं होता है हाँ, पैसे के हिसाब से, तो वो आदमी वो नेक है, शख्सियत है, पढ़े लिखे शख्सियत है, बामल आदमी है, काबिल है काबिल भी है, बामल शख्सियत है, लेकिन वो मजबूरी हो गया कि इसकी शादी करा दी ना। अच्छा। ख्याल रखते हैं कुछ मकान दिखाते हैं, वो तो आदमी का मुंह बंद हो गया बस। क्या करो अब वो मुंह बंद इसीलिए कर दिया कि ये आदमी काबिल है तो सर में काम लेना है। हाँ, हाँ। उन्होंने वो किताब लिखी है ना वो अनवारुल बयान, उसमें इनका जिक्र है कि नहीं ये अनवारुल बयान में, और इनको जानने वाले मुफ्ती मालवा थे, मुफ्ती रिजवानुर रहमान साहब। अरे वो तो शख्सियत थे साहब। नहीं, उनका इसने जिक्र भी नहीं किया अनवारुल बयान किताब में। वो मुफ्ती निजामुद्दीन साहब ने लिखा है कि इनको मुफ्ती रिजवान साहब लाए थे, तो जब वो लेके आए थे तो उनका चर्चा करना था ना अनवारुल बयान में, उनका तो करा नहीं और दूसरों को करा उन्होंने। अब वो पैसों का करता है जो इसको फायदा पहुंचाए। अब उनका क्यों नहीं किया, इसकी क्या वजह है? तो यही जानते होंगे कि भाई जो लाने वाले थे वहाँ से बस्ती से, उनका ही तुमने चर्चा नहीं किया। हाँ, और आज बस्ती से आके तुम राजा बन गए इंदौर के। हाँ बन गए साहब, अनवर साहब पीरे मुगा बने बैठे हैं। अरे वो तो आप आ गए उज्जैन में, इसलिए आपने उज्जैन में चमका दिया सुन्नियत को, वरना आप नहीं आते ना तो मामला खत्म ही हो जाता। अरे अल्लाह ने आपको भेजकर सुतून बना दिया सुन्नियत का आपको, और आप शेर दिल आदमी हो, हिंदुस्तान की बेबाक शख्सियत हो। वरना आज के जमाने में आदमी अपने पेट की परवाह कर रहा है, दीन इस्लाम की परवाह नहीं कर रहा है। आप तो बिल्कुल हक बोलने वाले माहिर शख्सियत हो, सानिए मुफ्ती आलम हिंद हो आप इस जमाने के। जी मैं तो आपका भी खादिम हूँ। अरे नहीं, मेरे खादिम, आप तो समझ लो सुल्तान हो इलाके के, मालवा के सुल्तान हो आप इंशाल्लाह। और अल्लाह ताला ने चाहा तो आप उतने कलंदर गौसुद्दहर हजरत नजमुद्दीन साहब कलंदर नालशवी के वसीले से अल्लाह ताला आपसे बहुत काम लेगा पूरे इलाके में। आमीन। मेरा तो अपना प्लेटफार्म बिल्कुल क्लियर है, साफ सुथरा। नहीं, आपने जो डंका बजाया है उज्जैन में और इलाके में, समझ लो अभी तक कोई ऐसा इमाम नहीं आया इलाके में जैसा आपने हक बात बोली है। हजरत मौलाना अय्यूब साहब जो जामिया के इमाम थे, उनके बाद आप ही आए हो। ये मक्कार लोग मुझससे हसद क्यों रखते हैं? इसीलिए रखते हैं। मैं इनको घास नहीं डालता बिल्कुल। अरे वो महबूब आलम को आप वो वहाँ की उज्जैन की इमामत मिल गई जामा मस्जिद की, उसने वो इमामत छोड़ के आज तो देखो तबलीग जमात का मरकज है ये सब। ये और जामशेदपुरा में भी जो मस्जिद थी वो चली गई है कि नहीं था? हाँ चली गई ना, इसमें अरे दे दी, देवबंदी इमाम बैठ गया उसमें। अच्छा, इसने ही दे दी महबूब आलम ने, है ना? और ये तो जानबूझ के छोड़ता है ना। ये तो बहुत अंदर से मिला हुआ मिली भगत है महबूब आलम और ये दोनों देवबंदियों से खुलेआम मिला हुआ है। मिले हुए लोग हैं।
इंशाल्लाह फिर मैं बात कर लूंगा साहब, ठीक है। जी जनाब, इसको डलवा देंगे हम चैनल पे, ठीक है। ठीक। जी।